غیر قانونی مقیم افغانیوں کے حوالے سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب احمد رضا سرور کی زیر صدارت اہم اجلاس، کمشنر آر پی او ڈپٹی کمشنر کی بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب نے ہر ضلع میں غیر قانونی مقیم افراد کو ہولڈنگ ایریا میں رکھنے کی ہدایات کرتی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے فیصل آباد میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب احمد رضا سرور کی زیر صدارت اجلاس، غیر قانونی مقیم افغانیوں کا جمع ہونے والا ڈیٹا پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید ڈاکٹر عابد خان کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ بھی ویڈیو کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ پہلے مرحلے میں ثبوت نہ ہونے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہر ضلع میں غیر قانونی افراد کو ہولڈنگ ایریا میں رکھا جائے گا۔ ہولڈنگ ایریا میں انتظامیہ اور پولیس کا آفیسر موجود ہوگا۔ ایف آئی اے اور نادرہ کی تصدیق کے بعد ایکشن ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے وقاص بیگ سے۔ وقاص بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب احمد رضا سرور کی صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں کمشنر فیصل آباد سلوت سعید، آر پی او ڈاکٹر عابد خان اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے۔ اس اجلاس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اجلاس میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کا ابھی تک کا جمع ہونے والا ڈیٹا جو ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس وقت پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں ثبوت نہ ہونے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور ہر ضلع میں غیر قانونی افراد کو ہولڈنگ ایریا میں رکھا جائے گا، جبکہ ہولڈنگ ایریا میں انتظامیہ اور پولیس افسران جو ہے ان کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایف آئی اے اور نادرہ کی تصدیق کے بعد ایکشن کیا جانا جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی ایسے فرد کے بارے میں جو کہ غیر قانونی مقیم ہے، ایف آئی اے اور نادرہ کی تصدیق کے بعد ہی ایکشن کیا جائے گا، جبکہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے حوالے سے پولیس کو خصوصی ٹاسک تفویض کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ملازموں کی حراست میں لیے گئے ابھی تک غیر قانونی قیام پذیر جو ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو تمام تر شیئر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کمشنر فیصل آباد نے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے جمع شدہ ریکارڈ بارے نہ صرف پیشرفت سے آگاہ کیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب کو، بلکہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے تمام اجلاس کو پلان تیار کر کے آنے والے 2 روز میں ہوم ڈپارٹمنٹ بھجوانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہے۔ کمشنر فیصل آباد نے افغانیوں کے جمع شدہ ریکارڈ بارے پیشرفت سے آگاہ کیا۔ وقاص بیگ آپ کا شکریہ۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے انتخابات 2024 سے 25 امیدوار برائے صدر چودھری مجاہد حسن پنسوتا کی وکلاء سے ملاقات۔ چودھری مجاہد حسن پنسوتا نے بار اور بینچ کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی سے۔ فصیح بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈی بی اے فیصل آباد کے جو الیکشنز ہیں وہ چند ماہ بعد ہی ہیں، لیکن اس کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور جو امیدوار برائے 2024-25 مجاہد حسن پنسوتا صاحب جو ہیں وہ اس الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں بطور صدر، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ان کا میٹ اپ بھی تھا ینگ وکلاء کے ساتھ، آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سب بتائیے کہ آپ نے بھی بات بھی کی ہے کہ جو چیمبرز کے بہت مسائل ہیں، اس کو کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی جیسے کہتے ہیں کہ رہنے کے لیے چھت چاہیے، تو میں کہتا ہوں اتنا ہی ضروری ہے کہ کام کرنے کے لیے آفس چاہیے، بنیادی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ینگسٹر کے مسائل ہیں چیمبرز کے بارے میں، اور یہ میرا ان سے وعدہ ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد الحمدللہ تعالی اپنی کامیابی دیتا ہے، اپنی اللہ تعالی رحمت سے نوازتا ہے، تو بہت جلد انشاءاللہ تعالی نوجوان وکلاء کے لیے ان کو ان کے اپنے آفس انشاءاللہ دلوانا اور ان کو اچھے چیمبر دلوانا اور پھر ان کو مینٹین بھی رکھنا، یہ انشاءاللہ تعالی میرے منشور کا حصہ ہے اور اس پر عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے 1-1.5 سال میں جو وکلاء کی جانب سے اور ایک بار کا اور عدلیہ کا بڑا ایک مقابلہ سا دیکھنے کو ملا ہے، اس حوالے سے کہ فیصل آباد بار جو ہے وہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ون ہوتے ہیں تو کس طرح اس چیز کو، ان کے عزت احترام وقار کو آگے لے کر جائیں گے؟ شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فارمولہ ہے، ڈو ریسپیکٹ ہیو ریسپیکٹ۔ ہم ہر اچھے کام میں عزت دیں گے اور اسی طرح توقع رکھیں کہ ہمیں بھی عزت دی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کسی شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ معاملات کو کیسے مینیج کرتا ہے۔ اف یو آر ود ان دا بار، یو آر این ایڈوکیٹ، یو آر پریکٹسنگ لائر، ان کو پتہ ہے کورٹ کا مزاج کیسا ہے، وکلاء کا مزاج کیسا ہے، تو ایک بیسٹ کمبینیشن بنانا پڑتا ہے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کہ بیٹھ کر باہمی افہام و تفہیم سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے تمام معاملات کو مثبت ڈائریکشن میں لینا ہے کہ بہتری کے لیے جو معاملات ہوں گے، اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور ساتھ مجھے نوجوان وکلاء کا میری بار کا تعاون ہے، تو جو بھی مسائل ہیں وکلاء اور بار بینچ کے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مضبوط رشتہ ہے، برابری کی بنیاد پر ہے۔ ہم
बेंच को इज्जत देंगे और इंशाल्लाह ताला उनसे इज्जत लेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही तवक्को की जा रही है कि जब भी इलेक्शन जीता जाएगा तो बेंच के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई गई। फसील नकवी, आपका शुक्रिया। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 5,000 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 2,10,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,286 रुपए सस्ता 1,80,041 रुपए का हो गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं फजील अहमद। फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट के अंदर सोने की कीमत में आज कमी हुई है। फी तोला सोना 5,000 रुपये सस्ता होने के बाद 2,10,000 रुपये का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,282 रुपये की कमी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर 1,80,041 रुपये हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले जो हजरात हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डॉलर सस्ता होने की वजह से जो सोने की कीमत है वो कम हो रही है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर भी सोने की कीमत जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। डॉलर जो है वो मजीद अगर कम होता है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजीद अगर बेहतरी की तरफ जाती है तो सोने की कीमत मजीद कम हो सकती है, जिससे कारोबार में भी बेहतरी आएगी और आम आदमी की सोने तक रसाई जो है वो भी आसान होगी। सोने का कारोबार करने वाले जो सराफा मार्केट के ताजर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त डॉलर जो है वो उसकी कीमत अगर मजीद कम होगी तो सोने की कीमत पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे ममालिक की तरह स्टेबल हो सकती है, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल की वजह से सोना जो है वो उस तरह से कम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। जैसे दूसरे ममालिक के अंदर सोने की कीमतें कम हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी भी 50 से 55,000 रुपये दूसरे ममालिक की निस्बत कीमत जो है वो आलमी मंडी में जो कीमत है उसकी निस्बत ज़्यादा है, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की मईशत है। और अगर पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ। फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर। रेलवे स्टेशन पर रश के बाद मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग फुल। स्टेशन इंतजामिया ने 29 अक्टूबर तक दोनों ट्रेनों की बुकिंग बंद कर दी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश जो है वो मुसाफिरों का बढ़ चुका है। दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत कसीर तादाद में मुसाफिर कराची के लिए फैसलाबाद से जो है वो सफ़र कर रहे हैं और इसी वाले से मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस में जो है वो बुकिंग बंद कर दी गई है। दोनों ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से बुकिंग की गई है। 29 अक्टूबर के बाद मुसाफिर जो है वो मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस में कराची के लिए बुकिंग करवा सकेंगे। इसी वाले से रेलवे इंतजामिया का यही कहना है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कराची के लिए मुसाफिरों की तादाद में इजाफा सामने आया है, जिसकी वजह से 29 अक्टूबर तक दोनों ट्रेनों में तमाम तर बुकिंग फुल हो गई है और मुसाफिरों को ये हदायत जारी की गई है कि 29 अक्टूबर के बाद मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस में मुसाफिर जो है। अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटों में 34 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 39,000 से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट्स पर बिल जारी कर दिया गया। वज़ारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 34 बिजली चोर पकड़े गए, जिनको 39,000 से ज्यादा डिटेक्सेशन यूनिट्स पर बिल भेज दिए गए, जबकि उन्हें 55 लाख के जुर्माने भी किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करा दिए गए हैं। इस हवाले से फैसलों काम का कहना है कि बिजली चोरों से कोई रायत नहीं होगी। बिजली चोरों के खिलाफ दिन और रात के औकात में कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिजली चोरों के खिलाफ रातों को भी छापे मारने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स की तामीराती कामों की स्कीम के हवाले से रिसर्च ऑफिसर ने इमारतों की बहाली का तखमीना लागत और PC1 तलब कर लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार से बिल्डिंग्स की बहाली पर दरकार फंड्स की तफसीलात तलब की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जितने भी ज़ेर तामीराती काम हैं उन तमाम की तफसीलात जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानब से डिप्टी रजिस्ट्रार से मांगी गई हैं। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चनियोट में महकमा कोऑपरेटिव की जितनी भी बिल्डिंग्स खस्ताहाली का शिकार हैं और ऐसी स्कीमें जो ADB स्कीम 2023 और 24 में शामिल की गई हैं, उन तमाम के जो है वो PC1 मांगे गए हैं, जिसके तहत महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन तमाम स्कीमों के जो है वो फंड जारी करेगा और इसके साथ साथ महकमा कोऑपरेटिव की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके तामीराती जो है वो काम सर अंजाम दिए जाएंगे। अभी जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानब से
फैसला बाद में सूबा भर के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनको मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत तमाम तफसीलात मांगी गई हैं, कितनी बिल्डिंग्स खस्ता हाल हैं, कितनी बिल्डिंग्स के PC1 मंजूर किए गए हैं और कितनी बिल्डिंग्स के हवाले से जो है वो फंड्स दरकार हैं। तमाम तर जो डाटा है वो तमाम जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हैं वो महकमा कोऑपरेटिव को साल करेंगे, जिसके बाद जो है महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से इन तमाम। इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती स्कीमों के हवाले से अहम खबर। लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती स्कीमों की रिपोर्ट मुरतब कर ली। हेड ऑफिस को डेटा शेयर कर दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर एक्सीएम की जानिब से स्कीमों का डेटा मुरतब कर लिया गया है। जिला इंतजामिया और साबिक टिकट होल्डर्स की मदद से तरक्याती स्कीमों पर काम किया जाएगा। इस सिलसिले में मुशावरत के बाद डेटा शेयर कर दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद इन मंसूबों की टेंडरिंग होगी और इसके बाद तरक्याती स्कीमों पर काम होगा। साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद पाकिस्तान आमद। नून लीगी कारकुनान का जोश अरूज पर। इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले लाहौर पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर शेख एजाज की क़यादत में काफिले लाहौर पहुंचे। शेख एजाज का कहना था कि कौम की उम्मीदें मियां नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। आज भरपूर इस्तकबाल से पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर ले जाएंगे। आप ये देख रहे हैं इस्तियाना रोड के ऊपर ये 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला, जिसमें हर गाड़ी में ये को तकरीबन 1000 बंदे गाड़ियों के साथ जा रहे हैं मेरे साथ। और ये मियां नवाज शरीफ को सिर्फ वेलकम करने नहीं जा रहे, ये मियां नवाज शरीफ के साथ आने वाली खुशहाली को वेलकम करने जा रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ के साथ आने वाले जो अच्छे दिन हैं उनको वेलकम करने के लिए जा रहे हैं। ये महंगाई से निजात के लिए जा रहे हैं। PTI ने 4 साल दौर में जिस तरह इस मुल्क का मईशत का दिवालिया निकाला, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये लास्ट होप हैं। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला फिर से सब कुछ ठीक होगा। नवाज शरीफ वतन वापसी के हवाले से फैसलाबाद में लेबर विंग और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने रैली निकाली। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग तौसीफ नवाज खान ने रैली की क़यादत की। कहा PTI ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। नवाज शरीफ मुल्क को एक बार फिर एशिया का टाइगर बनाएंगे। आज हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और आपके सामने मनारे पाकिस्तान जैसे 2-3 जगह भी होगी तो आज फिल हो जाएंगी। आपने कहा कि PTI ने जो कुछ 3 साल में किया और आप लोगों के सामने आ गया है, जो उसने पाकिस्तान के साथ कर गया। तो हमने जो तरक्की में पिछले साल लगाए थे, आपकी मोटरवे ना हो, आपकी रिंग रोड ना हो, तो पीछे क्या बचता है? नवाज शरीफ साहब ने बनाया अपनी आवाम के लिए और अल्लाह के फजल से बनाया सारा कुछ। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी दोबारा मुल्क तरक्की करेगा, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा इसी तरीके से तरक्की की तरफ हम गामज़न होंगे। मेरे पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक शाह साहब ने और मरियम नवाज साहब और राना सनाउल्लाह साहब की हदायत के मुताबिक हम इस पर अमल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम आपके सामने ये काफिला खड़ा है, लाहौर के लिए रवाना होने लगा। आने वक्त पाकिस्तान इंशाअल्लाह एशिया का टाइगर बनेगा, ये फजल खुदा। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए कारकुनान काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंचे। कायद के इस्तकबाल के लिए कारकुनान पुरजोश हैं। तराने और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाल रहे हैं। समंदरी से लाहौर रवानगी से कबल इमार असम चौधरी असम गुजर, मेजर अकरम और शहबाज बाबर ने कहा नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदलेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान को संवारने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो उस बंदे ने पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की तरक्की जानता है और सारे के सारे जो वर्कर्स हैं, जो अवाम है वो जानती हैं। जब भी मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं उन्होंने आके डिलीवर किया, खाली नारे नहीं लगाए हैं, सारी बातें नहीं की हैं। 2013 हो जाए, उससे पहले 93 हो जाए, 97 हो जाए, जब इनका द्वार आया पाकिस्तान में तरक्की हुई। इंशाअल्लाह ताला और दोबारा मियां साहब आ रहे हैं और जो सफ़र 2017 में हमारा रुका था इंशाअल्लाह वहीं से कारवां होगा और पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा तरक्की की तरफ गामज़न होगा। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कमालिया से भी बड़ा काफिला लाहौर पहुंचा। साबिक MNA चौधरी असदुर रहमान ने काफिले की क़यादत की। साबिक MPA पीर कुतुब उल हक अली बाबा भी काफिले में शरीक थे। काफिला चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की क़यादत में गल्ला मंडी से लाहौर रवाना हुआ। शाहिद इकबाल गुज्जर कहते हैं मियां नवाज शरीफ मुल्क और कौम की तकदीर बदलने आ रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का खात्मा होगा। हमारा एक हकीकी लीडर जो मुल्क में 4 साल बाद वापस आ रहा है, इंशाअल्लाह ये मुल्क की तकदीर बदलेगा। इंशाअल्लाह मुल्क में तब्दीली आएगी, इंशाअल्लाह मुल्क में खुशहाली आएगी। एक बहुत बड़ा काफिला जिसकी क़यादत जनाब चौधरी अख्तर साहब, जनाब पीर कुतुब अली शाह साहब
उनकी क़यादत में इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलने वाले। लीगी कारकुनान का कहना है कि नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और पाकिस्तान के हालात फिर से बेहतर और खुशहाल होंगे।